Dear students, now chapter 2 is again continuing. Now we are moving to civil disobedience. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. The movement was turning violent in many places. An incident occurred at Chauri Chaura in Gorakhpur district of United Province on 4th February 1922. A peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. The incident led to the deaths of 3 civilians and about 22 or 23 policemen. So Gandhiji felt that satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles and the non-cooperation movement should be halted. Now the views were differing within the Congress. Some leaders within Congress were tired of mass struggle. They wanted to participate in the election to the provincial councils set up by the Government of India Act of 1919. They felt it was important to oppose British policies within the councils. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose argued for more forceful mass agitation and for full independence. In the situation of internal discussion and disagreement, once again two factors shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. The second was agricultural prices which began to fall from 1926 and collapsed after 1920. As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvests and pay their revenue. By 1930, the countryside was in confusion. Now, formation of Simon Commission. Under these circumstances, the Tory government in Britain constituted a statutory commission was set up under Sir John Simon. The main objective of Simon Commission was to review the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. Indian leaders opposed the commission as there were no Indian members in it. When the commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan, Simon, go back. All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. Now, the beginning of Purna Swaraj and the demand was raised. In October 1929, the Viceroy Lord Irwin announced an uncertain offer of dominion status for India and a roundtable conference to discuss a future constitution. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was also declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day. People were to take a pledge to struggle for complete independence, but the celebrations attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. Now the students, I am explaining you in हिंदी. तो अब जो है ये नेशनलिस्ट लोग सिविल ओबीडियंस की ओर बढ़ गए. तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने तय किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे. मूवमेंट जो है बहुत जगह वायलेंट हो रहा था. एक घटना भी हुई चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो यूनाइटेड प्रोविंस का था 4 फरवरी 1922 में. एक शांतिपूर्ण डिमॉन्स्ट्रेशन एक बाज़ार में अचानक वह हिंसा में बदल गया और वो भी उसका क्लैश होने लगा पुलिस के साथ. तो ये जो घटना थी इसमें कई सिविलियन 3 सिविलियन मारे गए और लगभग 22 या 23 पुलिसमैन. इसीलिए गांधी जी ने महसूस किया कि सत्याग्रहियों को सही ढंग से ट्रेनिंग दी जाए कि जब तक कि वे तैयार नहीं हों मास स्ट्रगल के लिए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करना चाहिए. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस लीडर से जब उन्होंने बात किया तो यहाँ डिफ़र कर रहा था. सब कुछ अंतर सबका
ओपिनियन, सबका विचार कुछ मतलब फ़र्क ला रहा था। कुछ लीडर्स कांग्रेस में अब थक गए थे ये मास स्ट्रगल से। ये चाहते थे कि हम लोग भाग लें इलेक्शन जो होने वाला था प्रोविंशियल काउंसिल का, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1919 में। इन्होंने महसूस किया कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जब तक काउंसिल में नहीं रहेंगे तो अपोज नहीं कर पाएंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने फॉर्मेशन किया स्वराज पार्टी का कांग्रेस में और कहा सबको कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स की ओर लौटे। लेकिन कुछ यंगर लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा और भी ज़्यादा फोर्सफुल मास एजिटेशन होना चाहिए फुल इंडिपेंडेंस के लिए, और यहाँ पर डिमांड हो गया फुल इंडिपेंडेंस का। ऐसी स्थिति में अंदरूनी डिस्कशन हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ और एक बार फिर से उसने दो फैक्टर जन्म दिया इंडियन पॉलिटिक्स की ओर लेट 1920s में। पहला था प्रभाव वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का, दूसरा था एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो कि गिरने लगी थी 1926 से और कोलैप्स हो गई 1920 के बाद। जैसा कि डिमांड एग्रीकल्चरल गुड्स का गिर गया और एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, पीजेंट्स ने बड़ा ही मुश्किल पाया कि अब अपना हार्वेस्ट वो कैसे सेल करेंगे और रेवेन्यू कैसे पे करेंगे। 1930 के आते आते कंट्री साइड पूरा कंफ्यूजन में था। तभी क्या हुआ कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में फॉर्मेशन हुआ साइमन कमीशन का। तो अब ये जो साइमन कमीशन आई तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया का उसको रिव्यू करेगी और सजेस्ट करेगी उसमें कुछ चेंजेस। तो इंडियन लीडर्स ने अपोज किया इस कमीशन को क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और जब कमीशन पहुंचा इंडिया 1928 में, इसका एक ही नारा लगा, साइमन गो बैक। सारे पार्टीज जिसमें कांग्रेस भी थे और मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट किया डिमॉन्स्ट्रेशन में। और तभी जो है जवाहरलाल नेहरू ने, ये वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने डिमांड कर दिया पूर्ण स्वराज का। तो अक्टूबर 1929 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने घोषणा किया, एक मतलब अनिश्चित ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का इंडिया के लिए और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि डिस्कस होगा कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज किया और डिमांड रख दिया पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए। ये भी घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 ये सेलिब्रेट होगा इंडिपेंडेंस डे के रूप में। पीपल ने एक शपथ लिया कि वो स्ट्रगल करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन सेलिब्रेशन ने बहुत मतलब थोड़ा ही ध्यान लोगों ने दिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक रास्ता निकाला जो रिलेटेड था ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फ्रीडम का, जो कि और भी सुदृढ़ मुद्दे को लिया जाए जो प्रतिदिन के जीवन से उस इशू को उठाया जाए। दैट्स ऑल। और ये कंटिन्यू रहेगा सिविल डिसोबीडियंस मोर इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।